प्रिय Дорогие दोस्तों, друзья, добрый नमस्कार आप вечер. लोगों Меня का। зовут मेरा नाम Олег है Огнев. अलेक्सेई Сегодня ओगनेव, записываем डीजी новый इकोसिस्टम эпизод. का И सीईओ, сегодня और आज наш हमारा एक और вебинар. वेबिनार है। Мы हम находимся अभी в हनोई Ханое, में हैं, в офисе हमारे нашей ऑफिस में, компании. И और с बहुत ही большой गर्व के радостью साथ मैं провожу यहाँ से अपना отсюда पहले वेबिनार первый कर रहा हूँ। вебинар. आज Сегодня मैं я बताने расскажу वाला вам हूँ आप о लोगों को последних अपने событиях, लेटेस्ट связанных इवेंट्स के почему мы बारे में, приехали हम в यहाँ पे Ханой. क्यों आए, Меня हम зовут किस एग्जीबिशन Андрей, में наверное, पार्टिसिपेट कर также रहे हैं, और मुझे शायद большинство लगता है कि кто-то об आप этом लोगों को знает. ऑलरेडी ये И बात पता है। поделюсь साथ ही साथ मैं आपके новостями साथ कुछ о समाचार शेयर करना चाहता уже हूँ на данный момент उन चीज़ों के свершившихся बारे में जो हमारे क्रिप्टो наших वॉलेट से открытых रिलेटेड है, шагах, क्रिप्टो наших कार्ड первых से шагах रिलेटेड है, в और подготовке к запуску पहली первого सेल्स की सेला शुरुआत का हमारे нашем लॉन्च पैड первом पे। складе. जैसे कि आप देख सकते Собственно, हैं, как вы सारे видите, प्रोडक्ट्स все लॉन्च हो रहे продукты हैं запускаются с опережением हमारे टाइम графика, से и все पहले, продукты और बहुत по ही лотном अच्छे से हो режиме, रहे и हैं। जैसे как вы अलेक्जेंडर говорить, ई ने बोला था Александр И पिछले на прошлом वेबिनार में, ये вебинаре, सारी चीज़ें все बहुत ही очень बेहतरीन здорово, हैं और очень मोटिवेट представляет. Так, करती हैं। собственно, तो давайте по चलिए порядку. वन बाय वन चीज़ों Во को Вьетнам мы डिस्कस करते приехали हैं। на выставку वियतनाम में हम आए हैं Вьетнам ETH वियतनाम 2024. Это 2024 крупнейшее पे। यह सबसे мероприятие बड़ा по развитию क्रिप्टो करेंसी криптовалюты. ब्लॉकचेन से Ну и в रिलेटेड первую очередь इवेंट है по एशिया में, технологиям, और टेक्नोलॉजी да. से रिलेटेड है फर्स्ट ऑफ Мы, ऑल। как и और जैसे कि говорили हमने в конце पिछले साल के прошлого अंत года, में बोला था, делали так, что हमने поставили такой हमारे план, सामने एक что ऐसा प्लान सेट 24 किया год– था, это год जो выставок, ивентов 2024 जो и, एक ऐसा собственно, साल होगा всяческого जहाँ पे присутствия इवेंट्स экосистемы, होंगे, где एग्जीबिशंस продукты होंगे, будут और размещены इकोसिस्टम фондом на का крупнейших международных मौजूद мероприятиях. होंगे В अलग прошлом अलग году нам удалось посетить इंटरनेशनल इवेंट्स Мумbai, पे, вот क्योंकि पिछले साल год में हम मुंबई जा सके थे, городе पिछले साल हम Новосибирск, इन्वेस्टमेंट где फोरम कर находится पाए थे Disneyland Pałac. नोसिबिर्स्क में, Мы, और наши продукты, наши ऑब्वियसली партнеры हम और हमारे готовы प्रोडक्ट्स और выступать на हमारे своих पार्टनर्स ивентах. Это तैयार вот हैं крупное, बड़े первое लेवल крупное पे आने के мероприятие, लिए। где और ये представлены सबसे спикеры. ये На पहला каждом बड़ा इवेंट है панельных जहाँ पे हम дискуссиях स्पीकर्स की проводим तरह आए हैं, और воркшопы, पैनल мероприятия डिस्कशन में भी на आए थे, наших वर्कशॉप्स भी профессионально करे थे। оформленных और यहाँ पे торжественных ऐसा столиках. प्रोफेशनल Собственно, स्टैंड ETH है। Vietnam तो 2024. ये ETH Мы, वियतनाम наверное, 2024 है। наснимали достаточно большое हम количество शायद контента, и через बहुत ही какое-то ज़्यादा हमने время будет कंटेंट बनाया, और готов कुछ समय ознакомиться बाद हम अलग видеоролик अलग वीडियोस конкретно об этом बनाएंगे और мероприятии, आपको हम где इवेंट के बारे में будет वीडियो में интервью बताएंगे, директора जहाँ पे हम इंटरव्यू директора भी होगा первой पीटर के экосистемы साथ, DigiU, एवर के टेक्निकल डायरेक्टर директора के साथ। Евгения Фараджа, директор по फराज भी бизнес-аналитике. Еще परफॉर्म несколько करेगा, ये дней हमारा будут डायरेक्टर ऑफ спикеры बिजनेस вьетнамские. डेवलपमेंट है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है, और Владельцы ऑब्वियसली अलेक्जेंडर компании ई भी इसमें DigiU. पार्टिसिपेट करेंगे Если और अपना вкратце, то мы приехали एक्सपीरियंस по शेयर причине करेंगे। अगर Вьетнама, शॉर्ट में बात करें तो हम यहाँ पे ऐसे представляли आए हैं, продукцию, потому что сейчас, как вы और знаете, एवा को готовится प्रोडक्ट запуск, и в ближайшие там, एवा को недели रिप्रेजेंट он किया уже था हमने, क्योंकि случится. И आपको вот पता है कि посещение आने वाले данных कुछ हफ्तों мероприятий में इसका это लॉन्च होने वाला है, और ऐसे इवेंट्स में это पार्टिसिपेट можно करके назвать и हम प्रमोशन промоушеном, и करते हैं, таким और वो जो завершением हमने इतना बड़ा काम किया है उसका тех अंत है। больших क्योंकि अब программ. जो Вот एवा наша टीम команда है также также वो захотела डेनवर भी выступить в जा ивенте, चुकी который है, здесь вот वहाँ पे भी во एग्जीबिशन था, और Вьетнаме साथ ही мы साथ यहाँ पे वियतनाम में हमने एक ऑडियंस बनाई, एक подготавливаем इंटरनेशनल все कम्युनिटी лаборатории, बनाई, международные फंड बनाए сообщества, हमारे प्रोजेक्ट के фонды स्टार्टिंग के к लिए। старту проекта. और Что क्या хочется कहना चाहता сказать? हूँ, Команда जो провела टीम ने большую बहुत ही работу. У बड़ा нас काम किया है। на हमारे стенде स्टैंड पे работало около 10 लोगों 10 से человек, ज़्यादा ने это партнеры पार्टिसिपेट из किया था Вьетнама, वियतनाम партнеры से, DigiU, партнеры और DigiU и большая एवा से часть डीजीयू победителей से पार्टनर्स थे, сегодня और сделала उनका запуск, धन्यवाद करना организовав चाहता все हूँ эти मैं। стенды. मिस्टर И, डोवन टाम ну का вот, стенд, с धन्यवाद которым करना вас ждут, चाहता हूँ मैं कि в उन्होंने целом все ऑर्गेनाइज किया стенды, они पूरा выглядели प्रोसेस। जो одинаково, हमारा это было स्टैंड है, как-то और जो सारे स्टैंड बहुत ही выделяющееся. सिमिलर Но थे, कोई на ऐसे нашем स्टенде, как यूनिक स्टैंड всегда, नहीं было थे, लेकिन огромное हमारे स्टैंड पे столпотворение. हमेशा की Во-первых, तरह потому बहुत что ही ज़्यादा लोग थे, интересно, हमेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए во-вторых, क्योंकि потому что इंटरेस्टिंग होता है लोगों консультация, को, और которая दूसरी बात है оказывали क्योंकि कंसल्टेंसी जो हमारी наша टीम्स команда, она प्रोवाइड कर далеко रही थी исчерпывающая, что वो इतनी были बढ़िया сделаны थी, इतनी серии डिटेल थी совместных कि लंबे लंबे мероприятий с बातें हुई фондами थी и अलग अलग там, एक्सेलरेटर्स के साथ, फंड्स специально के мы साथ। там और हमसे बार с बार पूछते Александром थे, मेरे искали से, पीटर से, выставки, अलेक्जेंडर проводили से, हमें какие-то ढूंढते थे, конкурсы, какие-то लाते थे और कहते воркшопы. थे कि यहाँ Ну पे да, в तुम्हें целом कॉन्टैक्ट наша शेयर команда, करना है, она यहाँ पे बात करनी है। तो без डोवन टाम की जो टीम है работы на और हमारी стенде सपोर्टिंग проработала टीम была, जो है, и और जो здесь स्टैंड पे огромное हमने इतना количество काम किया है, контактов. И, उन्होंने बहुत собственно, ही बड़ा с काम ними किया है, और हमें बहुत этим सारे крупным नए इंटरेस्टिंग проектом कॉन्टैक्ट्स и मिले। огромному количеству нужных हमने भी людей बहुत ही अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट проект किया, और Эйва, बहुत ही фонды, इंटरेस्टिंग लोग हमें मिले, финансирование. और ईवा प्रोजेक्ट Что को еще हमने अपने хочется बारे में хочется बताया। отметить? इसके अलावा मैं और क्या К कहना चाहता сожалению, हूँ, вот посещение подобных выставок,
परफॉर्मेंसेस और ऐसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से, ऐसे थीमेटिक चीज़ों में पार्टिसिपेट करने और हेडलाइनर्स के साथ, जैसे जहाँ पे वितालिक बुटेरिन आया है, ये एक बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है प्रमोशन का, हमारे प्रोडक्ट का और उन फाउंडर का, उन लोगों का जो इन प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं। इसका क्या मतलब है? हम फराज जो डायरेक्टर है एवा के बिजनेस डेवलपमेंट का, उसके पास काफ़ी कई सारे परफॉर्मेंसेस थे विताली बुटेरिन के साथ, और इसके बाद उसने बहुत ही अच्छे से बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में और अच्छे से सारे एक्सेंट्स को रखा अलग अलग ऑडियंस पे के ऊपर, और वहाँ पे लाइनें खड़ी हो जाती थी। और लोग, सबसे अच्छी बढ़िया चीज़ थी कि कभी कभी अलग अलग मार्केटिंग एजेंसीज आती थी, तो ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हेडलाइनर था वितालिक बुटेरिन। इसकी मदद से यहाँ पे टॉप फंड्स की तरफ से लोग आते थे। यहाँ पे OKX आए थे, एशियन एक बहुत बड़ी एशियन फंड भी आए थे, ओकी भी आया था, डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम। और एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे हम उनके पीछे नहीं दौड़ गए, वो एक बढ़िया क्वालिटी स्पीकर देखते थे, टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट देखते थे, और वो खुद आते थे और खुद देखते थे कि क्या हमारे पास लिस्टिंग है, क्या हमारे पास चेकिंग के डॉक्यूमेंट्स है, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स है? अगर हाँ, तो हम आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको प्रमोशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्लान में बहुत ही बड़ा सक्सेस हम लोगों को मिला। तो आने वाले कुछ समय में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है और एवा के बारे में आपको समाचार मिलते रहेंगे। तो इसको देखिए, ज़रूर देखिए, और ये समाचार आपको मिलते रहेंगे। और क्या कहना चाहता हूँ, ऑब्वियसली अलेक्जेंडर ई ने, जो हमारा वेंचर फंड का डायरेक्टर है, वो यहाँ पे आया अलग अलग ट्रेंड्स देखने, अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखने, एक्सेलरेटर के रूप में यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही गर्माहट के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट किया, जैसे लॉन्च पैड, क्योंकि ये एक बहुत अलग मैकेनिक है वेंचर फंड्स के लिए, एक्सेलरेटर्स के लिए, और उन लोगों के लिए जो हाई टेक टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं प्रोजेक्ट्स के लॉन्चिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, और उनमें से प्रॉफिट कमाने के लिए। हमने शेयर भी किया था बहुत कुछ, और हमने अलग अलग टॉन पैड के साथ मीटिंग भी की थी, और बहुत ही गर्व के साथ हम कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा इंटरेस्ट है मॉडल की, और प्रॉबली फ्यूचर में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कोई वाइट लेबल डिसीजन। तो कॉन्टैक्ट्स इंटरेस्टिंग मिल गए, क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे हमसे, और इससे भी बेहतरीन एक और चीज़ हुई है कि हम यहाँ पे तब आए जब हमारे पास एक रेडीमेड टेक्निकल सॉल्यूशन था। तो इन पहले कुछ महीने में 2024 के हमने तीन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए। हमने कैसे किया ये? क्योंकि हमने अच्छे से फाइनेंशियल स्टेजेस किए थे, RWA मार्केट प्लेस के और RWA बैंक के, और इन फाइनेंशियल स्टेजेस के अंदर हमने बहुत सारे फाइनेंसेस लिए और उनको सीधा हमने आगे डाला इंफ्रास्ट्रक्चर टीम और इन प्रोजेक्ट्स के लॉन्च के लिए। क्योंकि हमारा जो पहला टास्क है, वो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि कंपनी के एसेट्स जो बार बार बढ़ते रहे नए प्रोजेक्ट्स की मदद से, नए बिजनेस सॉल्यूशंस की मदद से, इसलिए कंपनी की कैपिटलाइजेशन और पॉसिबिलिटीज जो भी है वो सब कुछ बढ़ती रहे। तो हम ये कर चुके बहुत ही कम समय में, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, हमने लॉन्च किया, और शायद इस समय आपको समाचार मिल चुका है कि क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च हो चुका है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वॉलेट के अंदर वर्चुअल क्रिप्टो कार्ड बना सकते हैं, जिसको फ्यूचर में आप एप्पल पे, गूगल पे की जैसे पेमेंट सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे लॉन्च पैड के लिए, जिसके अंदर हम अगले हफ्ते 26 मार्च को पहली सेल्स करेंगे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में बात करूँगा मैं। इससे पहले मैं एक थॉट कंप्लीट करना चाहता हूँ अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और हम क्या करने वाले हैं इस साल।
हमारा टारगेट है अप्रैल एंड या फिर मई स्टार्टिंग में हम लॉन्च करें और चेकिंग करें, टेक्निकल चेकिंग करें मार्केट प्लेस और बैंक की। और इन प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट स्टेजेस पे हम कुछ स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग करेंगे और अभी थर्ड स्टेज चल रहा है फाइनेंसिंग का, और बहुत पार्टनर्स है और बहुत इन्वेस्टर्स ने अलग अलग देशों ने हमसे बोला कि हम इसको बड़ा करें, और इसलिए हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड भी किया और बड़ा भी किया। इसके लिए 25% इसमें डालेंगे और इसमें 10% हमने और भी डाला, तो 35% मार्केट प्लेस और बैंक का हम इन फाइनेंशियल स्टेजेस पे डाल रहे हैं। थर्ड स्टेज पे बांटा जाएगा। तो ये 1 अप्रैल को ख़त्म होने वाला है, तो सबके पास मौका है पार्टिसिपेट करने का, 2 प्रोजेक्ट्स पाने का। और हम अभी फिनिशिंग लाइन पे आ रहे हैं। चैट्स में हम वहाँ पे सवाल देख पा रहे हैं, क्या हम DGU शेयर्स बिना खरीदे हम क्लोज्ड राउंड में पार्टिसिपेट करें RWA मार्केट प्लेस और RWA बैंक के शेयर्स खरीदने के लिए। हम ऐसी पॉसिबिलिटी हटा नहीं रहे, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते कि ऐसी वो पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट्स को जो फाइनेंसिंग चाहिए वो मिल जाती है तो कोई ज़रूरत नहीं होगी कुछ अलग फाइनेंसिंग करने की। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कोई छोटा सा सेल जैसे 50,000 100,000 डॉलर्स के लिए और दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन इसके बारे में अभी बात करना बहुत ही ज़रूरी नहीं है। हम अभी फाइनल स्टेज पे जा रहे हैं। शायद अप्रैल में हम एक फाइनल स्टेज कर दें और एक छोटा सा फाइनेंसिंग स्टेज हम सब के लिए कर देंगे। सारे अनाउंसमेंट में हम बताते रहेंगे, आपको पता रहेगा और सबके पास मौका होगा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने के लिए। अभी एक बेसिक स्टेज पे हम कहना चाहते हैं कि आप अभी जो फाइनेंसिंग स्टेजेस चल रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप शेयर्स लीजिए और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाइए, ताकि आप RWA मार्केट प्लेस और RWA बैंक के प्रोजेक्ट्स पा सको। इसके अलावा हम डिपॉजिट्स पे भी काम कर रहे हैं। हमें बहुत ही बड़ा अच्छा फीडबैक मिला, क्योंकि अगर हम स्पेशली देखें कि मार्केट क्रिप्टो करेंसी की कैसी चल रही है, आप अभी देख रहे हैं कि बिटकॉइन अभी टॉप मार्क पे जा रहा है, रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है और आगे भी ये चीज़ें जा रही है। तो हम यूज़र्स की तरफ से क्या देख पा रहे हैं, हमारा जो वेल्थ प्रोडक्ट यूज़र्स है वो अगले प्रोडक्ट्स की तरह वहाँ पे डिपॉजिट्स आ रहे हैं और वेल्थ के अंदर 6 महीने 12 महीने तक वो रख सकते हैं। और ऐसा ये पीरियड जब चला जाता है अपना इथेरियम बिटकॉइन USDT ना वेस्ट करें और कुछ बहुत ही बड़ा ईयरली प्रॉफिट उनको मिले। अगर और आपको अभी भी चल सकता है कि अगर मान लीजिए आपने वेल्थ में इथेरियम में डाला होता $1000 और आप अभी 1 साल तक रखते, तो अभी आप उसको $4000 के वैल्यू पे बेच सकते थे, और तो आप समझ सकते हो कितना प्रॉफिट आप कमा सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा। और डिपॉजिट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर पाओगे। और ऑडियंस इस प्रोजेक्ट की ऑलरेडी जानती है इसके बारे में, अलेक्जेंडर ने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बता रखी है, तो ऑडियंस बढ़ रही है। और डिपॉजिट्स की ज़रूरत क्यों है हमारे इकोसिस्टम में? फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक के लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म है तो हम फार्मिंग स्ट्रेटजी के अलावा हम स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट की टोकनाइजेशन के लिए, जैसे कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, जैसे कोई छोटा पोर्टफोलियो बनाना मेन क्रिप्टो करेंसीज का। हमने ऑलरेडी शायद पोस्ट में बोला था इसके बारे में और वेबिनार्स पे इसके बारे में भी बात की थी। तो स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म पैसे रखने की अलग अलग हो सकती है। इसकी मदद से हम प्रॉफिट बढ़ाते हैं हमारी डायरेक्टिंग टीम का और उनका भी जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है। और सबसे बढ़िया चीज़ है हमारे 50% जो ओपन डिपॉजिट से है, ऑलरेडी 100 से ज़्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और ऑलरेडी
36 महीने के लिए वो लोग डिपॉजिट लेते हैं, और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग में 12 महीने के लिए रखते हैं और फिर वो कस्टमर केयर में सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि 36 महीनों के लिए कर दो, और हम उनको लिए 36 महीनों के लिए भी बढ़ा देते हैं इस समय को। तो ये बेहतरीन चीज़ है। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अभी 20 मार्च तक हम सबको बेहतरीन मौका दे रहे हैं मैक्सिमम परसेंटेजेस प्राप्त करने का, और आगे जाके ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अभी अगर आप डिपॉजिट खोलते हो तो एक फिक्स ईयरली परसेंटेज के साथ आपके पास ये मिल जाता है और मैक्सिमम मिल जाता है, तो प्रमोशन के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आपको इससे मिलेगा। और मैं क्या कहना चाहता हूँ लॉन्च पैड और मार्केट प्लेस के बारे में, 20 मार्च को ऑफिशियल स्टार्ट हो चुका है हमारे क्रिप्टो वॉलेट का, जो अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, और फ्यूचर में ऐसे ही ये लॉन्च पैड डेवलप होगा। यानी जैसे फर्स्ट स्टेज, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसका आप इस्तेमाल कर पाओगे हमारे क्रिप्टो वॉलेट की मदद से। क्या कहना चाहूँगा यहाँ पे, इस प्रोडक्ट का लॉन्च जो है इसके लिए बहुत ही बड़ी प्रमोशनल कैंपेन चाहिए होगी और ऑडियंस लानी होगी इकोसिस्टम के बाहर से। हर प्रोडक्ट का टास्क जो है, और आप देख सकते हो एवा के एग्जाम्पल पे कि हमें ऑडियंस बढ़ानी है, पूरी ऑडियंस बढ़ानी है, हमें हर प्रोडक्ट के लिए क्लाइंट ढूंढना है, मार्केट ढूंढनी है, और ये सारी चीज़ें कभी कभी साथ में भी करी जा सकती है। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकते हैं, लोकल मार्केट पे काम कर सकते हैं इत्यादि। तो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट पे एक ऑडियंस जो बहुत ही अलग अलग जगह से होगी। अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह, और ये हमारा मेन प्रिंसिपल है, वो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है DGU, और उनके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट लाना चाहते हैं, हम कंडीशंस लाना चाहते हैं, और आगे जाके हम सब कुछ करते हैं ताकि हमारे बारे में हर जगह से, हर देश से लोगों को पता रहे, टारगेटेड ऑडियंस इसके बारे में जाने। तो लॉन्च पैड का क्या मतलब है? लॉन्च पैड का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी मिल सकती है एक एलोकेशन टॉप प्रोजेक्ट्स में, जहां पे आप किसी भी तरीके से ऐसे ही नहीं जा सकोगे। तो क्या कहना ज़रूरी है, अभी से एक लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की जो इस साल के दौरान हम और हमारी टीम और पूरी टेक्निकल एक्सपर्टीज DGU इकोसिस्टम की और एवा की जो हमने बनाई है। और फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेना फाइनेंस इसमें पार्टिसिपेट करेगा। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा लॉन्च पैड्स पे, तो आप इनको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी इसके बारे में हमारे पास। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे बड़ी फंड्स है इसके अंदर, जहाँ पे हम गलती से नहीं, बहुत ही बड़ा काम करके हम यहाँ पे एलोकेशन प्राप्त कर सके, जो हम अपने लॉन्च पैड में सब लोगों को ऑफर करेंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि एलोकेशन जो मैक्सिमम अमाउंट होगी, या तो $150 या तो $100, यानी ये मिनिमम नहीं मैक्सिमम एलोकेशन है 150 या $100 की, ताकि हमें बहुत ज़्यादा लोग मिले, होल्डर मिले, और जो ज़रूरतें होंगी वो हमारे लॉन्च पैड पे कंप्लीट हो सकेंगी। और क्या कहना चाहता हूँ, ये हमारे स्पेसिफिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके अनुसार लॉन्च पैड काम करती है। अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट की ओर देखते हैं तो क्या देखा जा सकता है? ये देखा जा सकता है कि लॉन्च पैड्स पे हमेशा टोकन होता है, हमेशा लॉन्च पैड का, जिसको होल्ड करना ज़रूरी है, अपने पास रखना ज़रूरी है, और उसको ख़रीदना ज़रूरी है, और सिर्फ इसकी मदद से आप जो है सेल्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे। हमने कैसे किया? हम नहीं देख रहे कि
हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि लोगों को टोकन लॉन्च पैड के टोकन की ज़रूरत है, और हमेशा ऐसा होता है कि लॉन्च पैड में टोकन की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो हमारे केस में हमने आपको वॉलेट में कुछ भी एलोकेशन होनी चाहिए यूएसडीटी में जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो। तो ऑब्वियसली इसके बाद अगर आपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली और अगर आपने सेल में पार्टिसिपेट करने का मौका आपको मिल गया तो उसके बाद आप यूएसडीटी में उसको निकाल सकोगे और उसको इस्तेमाल कर सकोगे और आप बाकी चीज़ें भी कर सकोगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आसान है। आप ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कोई एक्स्ट्रा टोकन नहीं है। तो ये एक यूनिक चीज़ है। जब हम सब लोगों को बताते हैं वो कहते हैं बेहतरीन, हमने पहले क्यों नहीं किया ऐसा। ये बहुत ही बड़ा रिस्पेक्ट आप लोगों को हम देना चाहते हैं ऐसे सोल्यूशन के लिए, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो प्लेना फाइनेंस पहला प्रोजेक्ट जो 22 तारीख को एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी। अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें प्राप्त करनी है तो आप यहाँ पे जाइए, उनके सोशल मीडिया में जाइए, क्योंकि एलोकेशन बड़ी नहीं है, सिर्फ $35,000 है और आप सिर्फ $100-150 खरीद सकोगे। अभी 100% मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो लॉन्च पैड की टीम है वो अभी इस सेल पे काम कर रही है, लेकिन $100-150 मैक्सिमम होगा जो आपको मिलेगा मौका। तो अपने आप में जो प्रोजेक्ट है वो हमारे हिसाब से मौका देती है बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग एक्स प्राप्त करने के लिए। जैसे अगर आप ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे विटाली बुटेरिन ने बोला, अभी हम आपको थोड़ा सा प्लेना फाइनेंस के बारे में बताएंगे। आपके पास एक ऐप है जिसके अंदर आप 100-150 अलग अलग डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के साथ काम कर पाओगे, 100,000 क्रिप्टो करेंसीज के साथ। ये आपका हेल्पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका हेल्पर होगा। और विटाली बुटेरिन ने इसी चीज़ पे, इसी कॉन्फ्रेंस पे परफॉर्मेंस थी कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा इनका आपस में जुड़ना। और इसमें ऑब्वियसली दोनों मार्केट में आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी और उन टोकन के ऊपर दिखाई देगी जिसके ऊपर आप लोगों को पैसा कमाना आता है। तो प्लेना फाइनेंस ऑलरेडी इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है अपने एप्लीकेशन में, और आप सब लोग इसको ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं। और DGU के लिए जो हमारे साथ 2019 से है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले बोला था ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिम्बायोसिस के बारे में। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप लॉन्च पैड के सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए, हर सोशल मीडिया पे, ताकि आप एप्लीकेशन सबमिट कर सको। एलोकेशन बहुत ही छोटी है, इसलिए आप इसमें एप्लीकेशन डालिए। और DGU ऑडियंस के लिए आप वॉलेट में आइए, आप उसको देखिए, आप कार्ड खोलिए, ये सारी चीज़ें है, वर्चुअल कार्ड्स भी है, लॉन्च भी हो चुके हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक इंटरनेशनल सर्विस है, ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया यूज़र एक्सपीरियंस है हमारे लिए, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऑब्वियसली पूरी DGU ऑडियंस को मैं कहना चाहता हूँ, आप सेल में पार्टिसिपेट कीजिए और प्लेना फाइनेंस का $100 इस्तेमाल कीजिए, और कुछ समय बाद आप बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारा कि हमने आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व रखता हूँ। तो अंत में वेबिनार के मैं कहना चाहता हूँ कि 30 जून को सिक्योरिटी पेपर्स बिकना बंद हो जाएंगे। यह आखिरी दिन होगा जब आप लास्ट कॉन्ट्रैक्ट बना पाओगे हमारे पोर्टफोलियो में। इसके आगे सिर्फ आप अपने पैसे दे पाओगे जो आपने पहले नहीं दिए, और फिर रीऑर्गेनाइजेशन होगी कंपनी की, बर्निंग होगी, और या तो एक क्लोज्ड शेयर होल्डर कम्युनिटी होगी, या तो IPO में आएगा। इसके बारे में हम बताएंगे आपको। अभी हम कहीं मिडल में हैं,
इस प्रोसेस के हम धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और सिर्फ 1 या 1.5-2 महीना बचा है इसके अंत तक, इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी तो जल्दी से कीजिए। और हर महीने धीरे धीरे प्राइस बढ़ता जा रहा है ताकि इसलिए हम कम कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी लोगों को सिक्योरिटी पेपर प्राप्त करने की। तो ये मेन चीज़ है 2024 की, जिसके साथ मैं हर एक इन्वेस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आप अपने सवाल पूछिए चैट्स में और मैं और मेरी DGU टीम वेबिनार के दौरान हम आपके सवालों का जवाब देंगे। लॉन्च पैड से रिलेटेड सवालों का जवाब देंगे, एग्जीबिशन से रिलेटेड का सवाल का जवाब देंगे, फाइनेंस प्लानर फाइनेंस से रिलेटेड, और सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगी। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अभी से आप देख सकोगे इस वेबिनार को, प्रोजेक्ट के बारे में देख पाओगे, मैकेनिज्म के बारे में देख पाओगे इत्यादि। इसलिए हम वेबिनार के दौरान चैट्स में होंगे और मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ हनोई से, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में मौजूद होने का। ऑल द बेस्ट।